Indian cheerleader in history in India. Oh, wow. So I was with Kolkata Knight Riders. After me, there were Pune, Kolkata, everybody else. So yeah, I've learned one thing, that believing in yourself and what you wear, having the confidence in showing your skin and not showing your skin is very, very important. I think girls are going to face a lot of ups and downs, because they are going to have a lot of shoots and shows where they will be forced to wear. No, you'll have to wear this. Listen, don't wear it if you're not comfortable. Do not wear it if you're not comfortable, because you won't be yourself, and that's going to, people can see that on your face. So I think the best outfit you wear is confidence, and just be the way you are. Wear what you want to, and I think पीछे मत देखो, when God opens a door, it's for a reason, right? So when the doors are open, just keep going. I know there are ups and downs, but life is roller coaster. It will be very, very boring if it's really just good. So face your problems and be as strong as you can with every problem you face it. That's all I will say. Thank you very much. We talking about women empowerment कैसे होगा, but I strongly believe empowerment हो चुका है. That is why we discussing it. I like when we were talking, me and Khushi, I said every woman is a working woman. Only few get paid. So like हम कहते हैं आप क्या हो, housewife हो. Housewife does not get any salary. But trust me, उससे difficult कोई job नहीं है. So I rather use a terminology homemaker. She is the one who makes a home beautiful. Like Viva said, हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Almost all the girls said, my family does not allow me. मुझे अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ. खुशी मैम ने प्लेटफॉर्म दिया. So like Khushi, Viva and all the esteemed panel members, can we actually have a trend like ये allowed नहीं है से मैं कर सकती हूँ. अभी क्या हो गया? तो अभी भी हमारे यहाँ पे वो टैबू है. उससे उस माइंडसेट को दूर होने के लिए we are just few. It takes one person, one Khushi to start it. Yes. So why not start it today? Yes. Now again we have the debate actually. चलो. But in this case, yes, of course, it will take some time. We have to be mentally prepared for it. But yes, of course, it's going to be happening very soon. I'm looking forward for this. I believe Manasi. Manasi is yes, of course, yes. So why not start today? So hi, namaskar, namaste. This is Manasi Naik. I know we actually are discussing about women empowerment, but I personally feel we are really incomplete without the men. Let's face this, okay? Thank you. In today's, you're welcome. Because in today's life, it is very easy to make any kind of statement just like that. We are all here to support each other, and first of all, I would love to say heartiest congratulations to Dr. Khushi. जैसा नाम है वैसे ही personality है. Let's face it, Khushi. And the entire team of the Perfect Women magazine. I think you are playing a very good job. You're voicing us as a woman, as a girl, as a Mother Earth. I would, term it as. You're voicing us. It gives an immense pleasure. It gives very emotional, emotionally I'm saying this, you're voicing us, you're giving us this kind of platform where we can actually talk our heart out. And then again, the entire team, your team is doing a very good job, and I am more than happy to be a part of this. Thank you so much. First of all, thank you for inviting me in this wonderful show. And I'm Vaibhav Nema, director. And it's really honor to be here today. And thank you so much. This is a fashion show. And thank you guys for inviting me. खुशी मैम को कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको वुमेन्स डे? डॉक्टर खुशी मैम हमारी पुरानी दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. उनकी मैगज़ीन काफ़ी फेमस है मुंबई में और हर साल वो नई नई लड़कियों को मौका दे रही हैं. ये बहुत अच्छी बात है. थैंक यू.
पसंद आया आपको जो स्पेशली वुमेन्स को डेडिकेटेड है? ओके सो जो भी मॉडल्स हैं वो लोग फ्रेशर है. ओके सो खुशी जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और परफेक्ट वुमेन में अक्सर यही होता है, दे गिव न्यू फेसेस अ गुड टैलेंट. ठीक है, स्टेज देते हैं ताकि उनका टैलेंट बाहर आ जाए एंड आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप वापस मैम के लिए? खुशी ओके जी आप एज ए डिजाइनर आप क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? ओके सो वेरी थैंक्स टू खुशी. तो खुशी हैज़ इनवाइटेड मी फॉर दिस शो और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनकी डिज़ाइनिंग करके, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड जिस तरीके से दे आर वॉकिंग, दे आर कैरिंग देयर आउटफिट्स आर रियली ग्रेट. सो आई थिंक शी शुड ग्रो मोर और हर साल इससे भी अच्छा और इससे भी बेहतर शो करते रहे वो. अच्छा मैडम, आपने इनके लिए डिजाइनिंग की है और डिफरेंट कॉस्ट्यूम दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये तैयारी सिर्फ एक दिन की थी, सो आई थिंक सबको पसंद आ जाए. तो इसमें 3 राउंड्स है. एक है ग्लिट एंड ग्लैमरस राउंड, दूसरा हमने परफेक्ट वुमेन टाइटल को सपोर्ट करते हुए कल्चरल राउंड रखा है एंड थर्ड इज ग्रैंड फिनाले विच इज़ लाइक सिंड्रेला गाउन. जब विंटर चल रहा है तो कुछ खास विंटर है ये? विंटर चले जाए समर चले, लड़कियाँ ग्लैमरस ही होनी चाहिए. यहाँ पर फैशन शो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे खुशी मैम के लिए ऑर्गेनाइज किया? सी पहली बात तो मैं ये एक मैं इस मैगज़ीन को बधाई हमेशा देना चाहूँगी बिकॉज ये बहुत दिल के अजीज़ मैगज़ीन है. आई हैव बीन ऑन द कवर ऑफ दिस मैगज़ीन एंड आई थिंक इट्स हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज. ये मैगज़ीन हमेशा कुछ ना कुछ एक मोटिव, एक मैसेज, एक मोटो के साथ बाहर आता है एंड कुछ एक इनकरेजमेंट, एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैगज़ीन, a beautiful content and a subject and I also want to say, you know, all the contestants who have participated in this contest, all the very best. It's a beautiful experience. Enjoy yourself, take back some lovely memories home and yes, Khushi, amazing job. क्या प्लान है 31st और न्यू ईयर? यार हर साल मैं काम करती हूँ 31st के दिन, कहीं ना कहीं शोज़ कर रही होती हूँ या ट्रैवल कर रही होती हूँ. ज़्यादातर तो इनफैक्ट शोज़ के लिए बुकिंग आती है बट इस बार आई थिंक आई वांट टू बी एट होम बिकॉज आई हैव अ लिटिल फ्री टाइम. सो आई एम गोइंग टू बी विद माई डॉग, with my family and I'm going to enjoy my 31st. यार रेजोल्यूशन ना तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं. So you need to make resolution so that you can break it. So that's all I can say. But anyways, happy new year and a very happy and a successful 2025. I believe it is going to be a very shining year and may God bless and may the power be with you. Thank you so much. हाँ, परफेक्ट मिस वुमेन ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है न्यू कमर्स को. सब लोग अलग अलग सिटी से आए हैं. They've come from very small town and I think यहाँ पे आके उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाएगा and I think this is a very good platform to start with and मिस्टर संजीव जी को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगी. ही हैज़ बीन माई बैकबोन. आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट वन टू गेट मी इनटू इवेंट्स एंड तब से बस दौर चलता ही आ रहा है और आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ वो भी है हर शो में मिल ही जाते हैं. सो थैंक यू संजीव जी फॉर giving me a kickstart to my career and many congratulations and I hope and I will always pray that you not one channel I will always pray that you have more 10 channels in life and they all go boom. Thank you very much and all the best to all the models. This is just a start. Life बहुत आगे है अभी. Thank you. Yeah, hi, namaste and salam to everyone and ये फैशन शो का जो जिम्मेदारी मेरे को मिला, लाइक आई एम रियली वेरी लकी दैट परफेक्ट वुमेन मैगजीन वालों ने मेरे को चुना एंड दे हैड अ ट्रस्ट इन मी एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग वर्क फॉर मी बट स्टिल यू नो समहाउ यू नो लाइक आई मैनेज टू डू एंड द गर्ल्स वर रियली डूइंग वेरी गुड एंड you know like without mistakes you cannot success. So you know some people are doing mistake and they are learning from their mistake. तो मैं यही आशा करूँगी कि जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट किए दे शुड सक्सेस इन देयर लाइफ इन द नियर फ्यूचर. थैंक यू. जो लड़कियाँ अलग-अलग स्टेट से सिंगिंग से आती है, नर्वस होती है, तो उनको कैसे मैनेज स्टेज फियर हम लोग ऐसे हटाते हैं लेकिन बिफोर द शो उनको हम स्टेज पे लेके आते हैं और उनसे हम लोग टेक्निकल रिहर्सल कराते हैं. ओके
एंड ऑफ कोर्स लाइक मैंने भी लाइक आई हैव डन मोर देन 500 शोज, बट स्टिल हम लोग भी नर्वस हो जाते हैं कभी कभी. ओके, सो वी मोटिवेट, और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. पार्ट ऑफ द सिस्टम, पार्ट ऑफ द लाइफ. विदाउट वुमेन देयर इज नथिंग. औरत नहीं तो दुनिया नहीं. उनको नवाजा जाए, अवार्ड्स दिए जाए उनके काम के लिए. मुझे भी अवार्ड दिया है काफ़ी सालों के बाद. किसी ने, खुशी ने पर्पसली मुझे पुल अप किया स्टेज पे, फॉर विच आई एम बिट एम्बेरस्ड एंड ऑल्सो हैप्पी एंड थैंकफुल. थैंक यू एवरीबडी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. और दूसरा परफेक्ट अचीवर अवार्ड्स और परफेक्ट वुमन अवार्ड्स में बरसों से उसका हिस्सा हूँ. और गुरु भाई जब थे, मेरे दोस्त गुरु भाई और खुशी मैडम भाभी जी, उनके साथ मैं बरसों से जुड़ा हूँ. और ब्राइट जो है इंडिया में 2 लाख इवेंट, 2 लाख मूवी और अवार्ड इवेंट, सीरियल फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उनके लिए स्पेशल, गुरु भाई नहीं है लेकिन मेरे भाभी जी को मिलने 2 मिनट के लिए आया हूँ. पहले तो हाय, हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन. एंड सॉरी लाइक गिर गया एंड हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर. और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे परफेक्ट अचीवर्स का जो अवार्ड मिला है, ये मेरा शायद 1 लाख से ज़्यादा अवार्ड अभी तक ब्राइट को मिल चुके हैं और उसका स्टेज पे फिनिशन भी हुआ है. तो मैं भी जीवन में मोस्टली परफेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, धंधे में, फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ और मीडिया के साथ. और आपका और जो ये अवार्ड के लिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ, मीडिया का करता हूँ, मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीम और सबका मैं शुक्रिया करता हूँ कि इस लायक में बनाया. और मेरा हार्ड वर्किंग जीरो से हीरो की स्टोरी, संघर्ष से शिखर तक की स्टोरी, ये सब अवार्ड का नतीजा है. मैं हर 31 में, मैं ना 12 महीने में हज़ारों इवेंट्स और लाखों पार्टीज और सब में नॉर्मली अटेंड करता हूँ. 31 को भगवान और फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को, मतलब मेरे मदर, फादर और वाइफ और बच्चे के साथ मोस्टली हर सालों से बिताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. और थैंक यू टू डॉक्टर खुशी जो करता धरता है परफेक्ट वुमेन के मैगज़ीन की. और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और ना ही सिर्फ इनवाइट किया तो मुझे एक अवार्ड भी दिया, विच वॉज अ ग्रेट सरप्राइज. शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और सबसे बड़ी बात डॉक्टर खुशी की ये है कि वो बहुत सपोर्टिव रही है. जिस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म एक खड़ा किया है लड़कियों के लिए, टैलेंट के लिए, रॉ टैलेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है. और मैं वो टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई थी, उनके लिए आई थी, उनके टीम के लिए आई थी. और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी आज, डिग्नेटरीज, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस एंड हूसोएवर. बट मुझे बहुत अच्छा लगा एक नए साल की शुरुआत का जो कहते हैं कि इस तरीके से शुरुआत हो रही है. शायद ये आज नया साल ही होगा सारे उन लड़कियों के लिए जो इस परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बिकॉज one girl is going to change her fate tonight and I wish her all the very best. जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा lots of love. क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके अगर आ रहे हैं? वो मैं अनाउंस नहीं करूँगी अब. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी आप दस्तक देने वाली अभी मैं हमने स्टेज पे सुना. हाँ, because it is high time. So definitely I am going to try my luck in different languages other than my own regional mother tongue, which is Marathi. And I want to take my mother tongue ahead, which is Marathi again. और मैं हूँ तो मराठी मुलगी from पुणे, but हम में टैलेंट बहुत है और ये टैलेंट को मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ. एंड आई विश कि आप सारे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मीडिया हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ. सो थैंक यू. रेजोल्यूशंस वगैरह क्या है आपके नए साल के, या क्या कुछ प्लान है? सो रेजोल्यूशंस तो बहुत सारे हैं. फ़िलहाल मेरी तो डायरी अभी तक भरी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. और मैं बहुत सारा काम करना चाहती हूँ. और हाँ, शायद लेट्स सी, प्यार तो है, नहीं भी है, बट आई वांट टू फॉल इन लव अगेन. So today here I am. So I was very happy, and my parents, I think they were super proud. My dad is beside me, and today I'm here because of their support, and my whole support system is my family. Because when I'm in ups and downs, they are behind me. Mostly my dad. He's so sensitive person. He looks
strong, but he's sensitive. My mother, she is very brave lady, so she's the only one who always pushed me to do some big things in my life. My sister is she is my fashion designer actually, because she always guides me to do dress up and when I go out. So my family is super happy. I think I make them proud today, and that's it. खुशी मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले मैम ने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया, एजुकेशन लिया, उसके बाद जो है क्राउन लिया है। या डेफिनेटली यही यूएसबी है परफेक्ट वुमेन का। जब हम परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां वुमेन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सिंगल वुमेन, बहुत सारे पेरेंट्स के दबाव इसलिए नहीं होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके बच्चे कुछ करें, लेकिन आज की तारीख में नहीं, मेरे ख्याल से पहले से ही एक रिवाज रहा है कि सोचते हैं कि नहीं बच्ची है मेरी, पहले वो पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हो जाए, ताकि इन फ्यूचर शी इज़ केपेबल इनफ टू हैंडल हर ओन सेल्फ। जब तक वो खुद के लिए कुछ बनना जाए तब तक वो उसे प्रेशर करते हैं कि तुम अपने शौक़ पूरे नहीं करोगे, और यही किया है इन्होंने। पहले अपनी स्टडी की, उसके बाद में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद आज जब वो अपनी तरीके से फ्री हो चुकी है तो उन्होंने प्रेफर किया कि लेट्स स्टेप इनटू द ड्रीम जो वो बचपन से चाहती थी। कहीं ना कहीं जब हम पेजेंट्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो गाड़ी यहाँ आके अटक जाती है कि एज हो गई है, अब क्या करें, अब तो सिर्फ एक ही चारा बचा है, शादी करके सेटल हो जाए। उससे अच्छा है एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्यों ना हो जहाँ एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने अपने सपनों को पूरा करना है, आप सिंगल हो, आपको हक है अपने सपनों को पूरा करना है। और यही आज इन्होंने प्रूव किया है दैट यस शी इज़ केपेबल फॉर एवरीथिंग। शी इज़ एन एडुकेटर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन MBBS, शी इज़ ऑल्सो अ एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड नाउ शी इज़ अ ब्यूटी क्वीन। शी इज़ अ परफेक्ट पैकेज। अब आप शादी की बात करेंगे तो हम उसके प्रोफाइल में ऐड करेंगे। खुशी मैम, एक शो को तैयार करने के लिए कई साल महीने की तैयारी लगती है और फाइनली ये शो कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है, सक्सेस हुआ है। किसको आप बधाई देना चाहेंगे? श्रेय देंगे। श्रेय सर मैं सबको देना चाहूँगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया तो मैं ये कहूँगी कि ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ जो आज मेरे देव हैं। आज मैं अपने सभी जितने मेरी टीम है उन सबको श्रेय देना चाहूँगी। मैं परफेक्ट वुमेन की टीम को, परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया की टीम को, मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसकी वजह से ये शो दुनिया तक आवाज़ पहुँच रही है। मैं हमारे ब्राइट पार्टनर हैं जो योगेश लखानी जी, जो हमारे होर्डिंग के लिए और यहाँ तक कि इवेंट को पावर्ड बाय पार्टनर हैं, उनको बधाई देना चाहूँगी, थैंक यू करना चाहूँगी। मैं के सरा प्रोडक्शन हाउस को थैंक यू करना चाहूँगी। मैं इंडियन फिल्म फैक्ट्री जो हैं उनको प्रोडक्शन के लिए उनका थैंक यू करूँगी कि वो हमारे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने राह बताई उसके लिए। और यहाँ तक कि मेरे जितने गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पे कन्नू भाई जी हैं, श्री राधे फूड्स जो हमारे फूड एंड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं, मुक्ति फाउंडेशंस में हूँ आज मैं, मुक्ति कल्चरल हब में हमारा इवेंट हो रहा है। मैं इन सब का दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिनकी वजह से ये इवेंट सक्सेसफुल जो आप कह रहे हैं वो हुआ। थैंक यू। इवेंट को जज भी किया है, नॉट रॉन्ग, और सवाल भी कुछ कंटेस्टेंट्स से यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? ये पूरा इवनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत ही अच्छी बातें की गई, विमेंस एम्पावरमेंट की बातें की गई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। और उसके अलावा जो अचीवर्स हैं अपने अपने फील्ड के, उन लोगों को सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत शाम रही। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मिस का ब्यूटी पेजेंट भी हुआ जिसमें कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट्स थी जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया। और मैंने तो कई सारे सवाल पूछे और सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं। जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचती है एंड दे जस्ट लव देमसेल्व्स। तो सेल्फी के इस ज़माने में लोग सेल्फ लव में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम सब अपने आप को प्यार करें तो सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, नफ़रत हो ही नहीं सकती, है ना। तो बहुत बढ़िया शाम रही, बहुत मज़ा आया। योगेश लखानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और खुशी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और जितने भी लोगों ने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ आ रही है?
बहुत जी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मेरी एक फिल्म अभी आने वाली है, उसका नाम है चक्कर घिन्नी, और एक और बहुत अच्छी फिल्म आ रही है जिसका नाम है मस्ती 4, उसका हाँ मस्ती 4, उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। और उसके अलावा I'm Snigdha and I'm from Hyderabad. Today I won the title winner for this Perfect Miss of India 2024. I'm so excited and happy, and I did not expected this, but it is a super ever experience in my life. So today, after getting this crown, I'm feeling so proud and emotional, and myself, I just want to use this crown as a dignity of honor and respect, and I want to frame the women around me to win the titles like this, and I just want every woman to be come forward strong and independent, and here the experience is very. सभी विनर्स के लिए ये सारे जेम्स हैं, ये सारे स्टार्स हैं परफेक्ट वुमेन के इस साल के। इन्होंने जो किया है वो हर वुमेन को, हर लड़की को अपने लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए स्टेप उठाना चाहिए। जो इन्होंने आवाज़ उठाई खुद के लिए और आज इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, मैं से जानना चाहूँगा, मैं परफेक्ट वुमेन क्या होती है? परफेक्ट वुमेन वो होती है जो पूरा लव, प्यार, सेक्रीफाइस, इंटेलिजेंस, एम्पैथी, वर्नरेबिलिटी से बनती है। दैट्स कॉल्ड जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कोलकाता से मुंबई का जो सफर आपने तय किया है और फाइनली क्राउन आया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, और कलकत्ता एक सेकंड ना, क्या सवाल किया? परफेक्ट वुमेन बोलो अभी। जो आपने कोलकाता से लेकर मुंबई का जो सफर तय किया और फाइनली क्राउन हासिल किया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो मैं बोलूँगी, और उसके बाद मैं कलकत्ता से मुंबई शिफ्ट हुई थी ऐसे काफ़ी टाइम पहले, तो मुझे अभी तक वैसा कोई ब्रेक मिला नहीं था जो मुझे खुशी मैम ने दिया है यहाँ पे। जजेस को थैंक्स बोलूँगी क्योंकि जजेस की वजह से ये अच्छा लग रहा है, बस कुछ बोल नहीं पाऊँगी अभी कुछ मैं। इनका नर्वसनेस बता रहा है कि इनकी मेहनत कितनी है। घबराता वही है जो बहुत हार्डशिप करने के बाद सोचता है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं श्रीवास्तव मैम से जानना चाहूँगा, और सबसे आपको जो क्राउन मिला है और ये सारी जो महिलाएं जो घर पे हैं जिनकी बॉडी आपकी जैसी होती है, आपने उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली मुझे लगता है कि बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत चीज़ है, और बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो चाहे भी तो पतले नहीं हो पाते हैं, एंड कुछ लोगों की मेडिकेशन चल रही होती है जिसकी वजह से वो पतले नहीं हो पाते हैं चाह के भी। तो बॉडी शेमिंग बहुत ही गलत प्रथा है, हमें इसे रोकना चाहिए, एंड प्लस हमें इतना सुपरफिशियल नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों की सोल में झांकना चाहिए, उनकी रूह की गहराई को, उनकी अंदर की खूबसूरती को देखना चाहिए, ना कि उनकी बाहर की बॉडी या फेस की ब्यूटी को। कि हमें थोड़ा गहराई में जाके इंसान कैसा है वो देखना चाहिए। फाइनली मैम, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो ये लड़कियों ने विन किया, इसके बाद की जो जर्नी है वो और रिमार्केबल हो, इसकी मैं इनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ये एक पहला स्टेप है करियर का, इसके बाद अब इनके सारे डोर्स ओपन होंगे। मैं चाहूँगी ये अपना मुकाम इस तरीके से साकार करे कि परफेक्ट वुमेन का नाम इनके नाम से जुड़ा जाए। मैम, आज काफी इमोशनल भी आप रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इवेंट आप काफी इमोशनल मिस कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझी नहीं आपका सवाल। वैसा मत बोलो, मैं इधर रो दूंगी यार। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आज मैं जो भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उनके सपने को जो उन्होंने मेरे लिए कभी देखा और मुझे इस लायक रखा कि मैं अपनी आइडेंटिटी और अपना नाम कर सकूं और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आगे रखा। शायद कहीं उन्हें पता था कि एक वक्त आने के बाद जब मैं इस दुनिया में फिजिकली नहीं रहूँगा तो स्पिरिचुअली तो वो मेरे साथ हैं ही, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं अपने आप में उतनी स्ट्रांग हूँ कि सारी दुनिया को फेस कर सकूँ। मैंने वही कहा ना, क्योंकि ना मैं हर इंसान के 2-3 चेहरे होते हैं, मेरे शायद 3 चेहरे हैं। एक जो मैं यहाँ स्टेज पे थी, उसके बाद एक जो अभी आपने सवाल किया वो, तीसरा जो मैं इन सबके साथ अपनी फैमिली और आप सबके साथ हूँ।
हर इंसान को ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सबसे पहली ज़रूरत है पीस, और पीस कब आता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे डिमांड्स, हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। अपने आप से खुश रहना सीखो। जो भी आप कर रहे हो 100% उसमें दो। सक्सेस आपका ही है, आज नहीं होगा कल हो जाए, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। फेल हुए हैं ना, मेहनत करने पे फिर मिल जाएगा। जैसे अब ये मैंने कहा, सबसे बड़ा दुख तो वही है ना अपनों को खोने का, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। बाकी की इस दुनिया में सब जितने लॉस हैं सब रिकवर हो जाएंगे, जितने फेलियर्स हैं सक्सेस में तब्दील हो जाएंगे। जो फेल हुए हैं या ये चीज़ आज नहीं हुई कल हो जाएगी। इसलिए अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लिए जियो, सबसे अपनी खुद का नाम ऐसा रोशन करो कि दुनिया याद करे।